चुका हूँ आपके सामने द वोकेबलरी बिल्डर की दूसरी वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम कुछ और नए नए शब्द सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे, जो कि एग्जामिनर्स के बहुत ही फेवरेट और मोस्ट आस्क्ड इन एग्ज़ाम्स वोकेबलरीज हैं। आप इस इट्स ऑल इन हाउ को पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से ये जो हमारा द वोकेबलरी बिल्डर का जो सीरीज़ हम स्टार्ट किए हैं वो कैसे और क्यों पेनलेस है। ठीक है, तो इसके पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कुछ 20-25 वर्ड्स, जो कि आपको गेस हो गया होगा कि हाँ सच में ये वर्ड्स कैसे थे। चलिए बिना देरी किए हुए हम जो है इस लेक्चर को शुरू करते। सो इन दिस lecture 2, or you can say vocabulary part 2, it's all in how I have a 20 different ways of looking at things. Okay, so these 20 different ways of looking at things means 20 vocab, or you can say that 20 most powerful words for you. Okay, and these 20 words you have to justify in your own ways that how many are you familiar with. Okay, so in the first sentence, the Reagan's advisors were sufficiently sanguine. The first word we have a sanguine about poverty, to seek some remedy to unemployment. So here you have four options. The one is chastened, the V charged up, C embarrassed, and D sorry. So you have a choose the right one in these fours. So sanguine, I think related to sanguine related to embarrassed. Okay, so sanguine means related to embarrassed. So Reagan's advisors were sufficiently embarrassed about poverty to seek some remedy to unemployment. Okay, next we have another words, to diffuse criticism the senator mixed candor and contrition. Okay, so here two ना candor and contrition और contrition। हाँ, अगर मान लीजिए वोकैब को स्पेल में कोई प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ यार सॉरी फॉर दैट। ओके, सो हियर truth and apology, suggestion and sorrow, innocence and triteness, cunning and contrivance. So truth and apology आपको पता है, suggestion and sorrow this also know. So innocence and triteness. So the correct option of this question are A. Okay, truth and apology. Truth and apology. Okay, truth and apology. Next we have animosity. Okay, animosity, the posters reflect the animosity between the two groups. Someone has pasted the poster in the wall, and the poster indicates the quarrel between the two groups, means hatred, war, animal behavior, love. So love cannot be the correct, and war it may be, hatred it may be, animal behavior. So we have to choose right one. The right one is a A. Okay, hatred. The fourth one. Okay, fourth, the premier gave a conciliatory speech in which he stated, we are not seeking confrontation. Okay, conciliatory speech in which he stated we are not confrontation. Okay, so here you find the correct suitable words for this conciliatory or confrontation. So advisory we have, conversational, demanding, and friendly. So here the right one is friendly. Okay, the right one is friendly. Friendly is the correct. Okay, so next we move on the fifth question. So we have he made some desultory. Okay, desultory remarks about the state of the nation. So here
You can say desultory means unsolicited, sore, thoughtless, or off the topic. So here remind desultory means off the topic. He made some of the topics remarks about the state of the nation. Okay. Next, the speaker displayed a disconcerting load of misinformation and a dubious grasp of details. The speaker displayed, स्पीकर ने जो डिस्प्ले किया ए डिसकंसर्टिंग ना, जो उसे नहीं करना चाहिए था, लोड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डबियस ग्रेस्प ऑफ डिटेल. तो हियर यू कैन चूज द राइट वन, दैट इज escapism. ओके. सो हाँ हो सकता है escapism. नहीं नहीं नहीं, 6C. सो bewildering एंड क्वेश्चनेबल. ओके. सो bewildering एंड क्वेश्चनेबल. bewildering कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप bewildering, ये सारे जो 20 मोस्ट हैं, तो आप इस 20 से 20 इंटू मल्टीप्लाई इंटू 2, तो दिस इट्स ऑल योर 40 वर्ड्स. ओके. 25 पहले वाले वीडियो में थे आपके 25 to 30. सो इन दिस वीडियो इफ़ आई विल कवर 20, देन यू हैव 100 of words. Okay. Less than 100 of words, but it's a very powerful words, powerful vocab na. So next we have a seventh number. The president was criticized, okay, last week for his fickleness. As you like it में ये fickleness मिला है, as you like it में. okay, fickleness on foreign policy. So fickleness here stand for I think ineffectiveness. Okay. Fickleness related to ineffectiveness. Eighth, the general has grown more hawkish toward his enemies since retirement. So here hawkish stand for saber rattling. Do you know saber rattling? So here hawkish means such a person whose nature is like a very aggressive or warlike, and that policy has especially वो मतलब अपने जो मतलब उसका जो इस तरह का नेचर होता है, वो ऐसे आपने देखा होगा ऐसे मतलब बुजुर्गों को जिनके सामने कुछ पॉलिटिक्स की बातें कर दो तो वो बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं. आप किसी पॉलिटिकल पार्टी पर डिस्कस, पॉलिटिकल डिबेट पे डिस्कस कीजिए तो वो बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं. तो वार लाइक जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऐसे लोग को हॉकिस बोलते हैं. ओके ना, जो फॉरेन अफेयर्स में. और समझो हॉकिस वही बोलते हैं ना, जिद्दी अड़ील टाइप के लोग. तो इसके लिए आपको जो है सैबर रैटलिंग ये सही होगा. ठीक, जैसा कि हमने बताया कि दिस इज रिगार्डिंग टू हॉकिस नेचर. नेक्स्ट वी हैव व्हेन इट कम्स टू क्लोथ्स सी एन इंडिविजुअलिस्ट. तो इंडिविजुअलिस्ट का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये. सो ओके, यू हैव टू चूज राइट ऑप्शन. ओके. So you have a knee-jerk liberal, independent thinker, capitalist, eccentric. So here the correct option is independent thinker. Okay. We move on our 10th question. The loss of the game was blamed on her intransigence. Okay, intransigence. So intransigence here stand for obstinacy. Okay, obstinate nature. Now the loss of the game was blamed on her intransigence. जो उसका अड़ियल रवैया, जिद्दीपन था, उसे जो है उसको उस गेम को जो गेम लॉस किया था उसने, उसके इंट्रांसिजेंस को ब्लेम किया गया. ठीक है. द इंस्ट्रक्टर्स रिमार्क्स आर occasionally irreverent, not confused with irrelevant. ठीक. So here irrelevant and irreverent. Okay. So the correct option is flippant. Irreverent stand for flippant. Flippant is a person who is not very serious. Okay. जबकि
कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो उसके प्रति जो सीरियस नहीं रहता है, दैट टाइप्स ऑफ पर्सन कॉल्ड flippant. Okay, so here the structured remarks are occasionally irreverent, means flippant. Next, they plan to challenge the obstructionist legislators at the polls. They plan to challenge the obstructionist legislators at the polls. Okay, so you have to choose the right one. Okay, here the correct answer is standing in the way. Okay, standing in the way, or you can say in very simple way, in very easiest manner, the standing in the way or obstructionist means to prevent something, to prevent something. Okay, sorry, something. Okay, next we have a 13 number. With total irony, they cautioned the old man not to let his penury spoil his retirement plans. I think most of you know very well what the actual penury means. Penury means poverty. Okay, ये थोड़ा easy था. The hawks in last I think I have discussed hawkies. Okay, hawkies and hawks. Okay. So the hawks seemed to derive a certain release from the Arab Israeli unrest. So hawks here the correct answer the correct answer is C, pleasure. The hawks seem to derive a certain release, no? Release from the Arab-Israeli unrest. Okay, release means pleasure. 15th, a murderous infamy usually increases in proportion to the renown of the victim. So infamy, renown, so bad reputation, fame, able deed, smartness. So smartness तो नहीं है. Horror fight, it cannot be, and bad intention, refusal, it may be, or A or C may be. So I think A is correct. Bad reputation and fame. Okay, so we have correct option, correct answer option A. 16, I am unable to speculate on what may have gone wrong. So I am unable to speculate. So here speculate stands for theorize. Okay, speculate, theorize. Okay, and the claim is nonsense, but the made skillful use of the data to get the spurious message to across. Here spurious stand for is not speedy, phony, digging, sputtering. So here spurious stand for phony. Okay, सो इफ़ यू अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्ड्स जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आप ये जो स्प्यूरियस जो भी वर्ड्स हैं 20 और 20+ जो भी वर्ड्स हैं उससे आप वर्ड्स को अपने सेंटेंस को बनाइए. ठीक, 2-4 सेंटेंस बनाइए, खुद के सेंटेंस बनाइए, और ये हमेशा हमेशा के लिए आपके मेमोरी में सेट हो जाएगा. ओके, 17. नेक्स्ट मूव ऑन. 18th, दिस बुक वॉज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई ए स्टॉलिड पब्लिशिंग हाउस. So this book is not produced by Stolid Publishing House. Here Stolid stand for unimaginative. So Stolid, unimaginative, not imaginative. Okay, un prefix है, imagine कल्पना. Okay, so you I think बहुत ही कम लोग इसका मतलब जानते होंगे स्टॉलिड, जो कि अनइमेजिनेटिव से अनइमेजिनेटिव का मीनिंग दे रहा है. ठीक. 19th, वी हैव गॉट द मोस्ट स्ट्रेंजेंट. पता है सबको, इजी है. ठीक, स्ट्रेंजेंट. ओके, तो एंड 20 वी नीड टू बैक अप आवर थ्रेड्स विथ टेलिंग एक्शन. आई थिंक इफेक्टिव टेलिंग एक्शन, किसी को बातों से बताएंगे तो इफेक्टिव होगा ना वो. ठीक, तो ये है ये हमारा कंप्लीट हुआ. कौन सा
It's all in how, and in which we have discussed embarrassed, chagrin, one chagrin, and candor and contrition ना. मेक अ सेंटेंस ना, अपने अपने आप से सेंटेंस बनाइए आप. नेक्स्ट वी हैव अ मिस्ट्री हिस्ट्री. ओके, मिस्ट्री हिस्ट्री, ये इसको फोकस करना है, ठीक है. इसमें हम इसको फोकस करेंगे. तो मैंने कहा था ये पेनलेस गेम है. गेम खेल खेल के हम जो है वर्ड्स को बहुत स्ट्रांग बनाने वाले हैं. बस आप धैर्य रख के, पेशेंस रख के बने रहिए इसमें, ठीक है ना. सो इन दिस गेम वी हैव अ मिस्ट्री स्टोरी गेम. तो इसमें ऐसा है कि हमको एक राइट साइड में एक ऐसा जो लेटर दिया गया है जो जिसमें ईज छिपा हुआ है. आप नोटिस कर सकते हैं, जैसे ये ईज है, ठीक, और ये ईज है. हियर इज एंड आई एस. ओके, फिजिकल, पैसिफिस्ट, ओके, पॉपुलिस्ट, रेलिस, रिक्विज, ओके, एंड सीज, simplistic and visceral. Okay, so तो वी हैव अ 16 इज वर्ड्स. यू कैन ऐसे आप एक कर सकते हो कि इज वाले वर्ड्स जिसमें इज छिपा है, ठीक. और हियर आपके बाएं साइड पे ये दिया ही है, आपके जो राइट साइड पे है वो क्लू दिया गया है. तो हमें ये पता लगाना है कि जो ये इज वाला वर्ड्स है वो किस क्लू के साथ जाता है ना. ये जो वर्ड्स है किस, हमारे को क्लू दिया. जैसे मान लीजिए एक एक्टिविस्ट है, तो आपको पता करना है कि एक्टिविस्ट किस वर्ड के साथ ना, मतलब किस क्लू के साथ जाएगा. तो हियर यू कैन से दिस इज द वर्ड एंड हियर क्लू. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर. सो हियर द फर्स्ट वर्ड वी हैव एक्टिविस्ट. सो एक्टिविस्ट, as we know that activist is a person who takes actions to cause political or social change, यूजुअली एज अ मेंबर ऑफ ए ग्रुप. ओके, सो एक्टिविस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी राजनैतिक या सामाजिक व्यवस्था में जो चेंजेस लाने की बात करता हो, ठीक है. मतलब एक ना, उसी को हम कहते हैं. सो हियर यू कैन नोटिस दैट. सो द एम ना, द एम मीन्स दैट कॉज इज वर्थ फाइटिंग फॉर, ठीक. एक्टिविस्ट अ पर्सन दैट कॉज इज वर्थ फाइटिंग फॉर. Okay, next word we have a anguish. So anguish is a word which is related to k. Here k you can notice, huh? So in such torment, pida, tears, आंसू, his hair. In such moment he tears his hair. tears, उखाड़ना, बाल उखाड़ना शुरू किया. ऐसी पीड़ा हो. एंग्विश मतलब क्या होता है? वेदना, पीड़ा, कष्ट ना. बॉयस्टर्स, बॉयस्टर्स मतलब होता है जो उद्यमी. तो ऐसा उद्यमी, उद्यमी मतलब क्या ना. तो अब इसको आप हम लिख सकते हैं कि एच ना, एच हो जाएगा इसका, या फिर ऐसे ही कर देते हैं. चलो ऐसे करते हैं, ठीक. ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा 2, एंड हियर दिस इज़ अ 3. ओके, सॉरी 3, ये थोड़ा लाइन, ठीक. सो ठीक, 3. नेक्स्ट वी हैव वर्ड बर्निश. ओके, बर्निश इज अ, यू कैन से रब इट सो इट साइंस. बर्निश मीन्स किसी चीज़ को रगड़ना ताकि जब तक चमक आ जाए. ब्रिस्टल, ब्रिस्टल मीन्स होता है कि इफ लुक्स, ब्रिसल को हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा करना कि मतलब टू शो दैट यू आर एंग्री. मतलब ब्रिसल एक ऐसा मतलब कि एटीट्यूड होता है जिससे कि मतलब सामने वाला डर जाता है, मतलब ना. तो कहते हैं ऐसा, इफ लुक्स कुड किल. तो पांचवें को हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक. डिसाइपल, you can say sis who help get the word out ना. सिस्कीम, गुरु सहायता करता है ताकि वो जो है शब्द को सीखे. डिसाइपल. 6, एंटरप्राइज. नेक्स्ट वर्ड्स वी हैव एंटरप्राइज, एंड वी हैव टू फाइंड द
proper clue for this word. So we have a proper clue. Enterprise means, enterprise मतलब होता क्या है? Enterprise means a person who makes a new plan project for a business. मीन्स नई योजनाएं बनाना, नए बिजनेस को शुरू करने की जिसके पास एबिलिटी हो, सो ऐसा कुछ। तो वो मतलब कि कान कुछ ऐसा ना जोड़ सके ना सब्ट्रैक्ट कर सके, तो मीन्स आई थिंक दिस इज द सूटेबल। ओके, एंटरप्राइज 7। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव फिस्कल। ओके, सो फिस्कल, फिस्कल के लिए हमें एक राइट क्लू ढूंढना है, फिर उसके बाद इस वर्ड को हम आसानी से उस क्लू तक ले जा सकते हैं। तो प्रिंसिपल ड्राफ्ट डॉजर, ठीक। तो आई हैव अ वर्ड। फिस्कल मीन्स होता क्या है? फिस्कल मीन्स होता है, यू कैन से, फिस्कल वर्ड सुना होगा तुमने, कॉमर्स के स्टूडेंट जानते होंगे, फिस्कल रिलेटेड टू टैक्सेस। ओके, सो हियर टैक्सेस रिलेटेड टू, तो इजीली हम कह सकते हैं कि जो क्लू दिया है, देखो उसने पी, सॉरी पी लिख रहे हैं, दिस द 8th नंबर का वर्ड है। फिस्कल मीन्स होता है वेयर देयर इज मनी देयर इज टैक्सेस। तो फिस्कल वर्ड रिलेटेड टू टैक्सेस, ठीक। एक्टिविटीज रिलेटेड टू दैट कॉज इज वर्थ फाइटिंग फॉर, मीन्स मतलब कि समाज के उत्थान के लिए बहुत ही एक्टिव, सक्रिय ना। नेक्स्ट, मिस कैलकुलेशन, आई थिंक सबको पता होगा यार। मिस कैलकुलेशन के लिए हमें क्लू ढूंढना है, तो आप चाहे देखिए, चाहे आप ये स्क्रीनशॉट लेके क्लू ढूंढ के इसको कर लीजिए, या तो फिर जो है क्लू ढूंढ लीजिए, उसके बाद वर्ड को मैच कर दीजिए। ऐसे वर्ड्स का अर्थ जान रहे हैं तो फिर क्लू ढूंढ लीजिए। दोनों तरीके से आपका जो है सही होगा, ठीक। सो इफ वी टॉक अबाउट मिस कैलकुलेशन, सो मिस कैलकुलेशन हियर यू कैन से कांट इट, सॉरी 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 सॉरी, ओहो, this is the 9th, and enterprise, it will be go on risky, but the goal is worth, sorry, I'm very very sorry. So C is the correct clue for, C is the correct clue for enterprise. Okay, ठीक। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट ना, जो शांति चाहता हो, ऐसे पर्सन को हम पैसिफिस्ट कहते हैं। जो हर चीज़ का हल शांति से निकालता हो, मारपीट पे विश्वास ना रखता हो, ऐसे लोग को हम पैसिफिस्ट कहते हैं। तो हम इसको जो है, पैसिफिस्ट को हम प्रिंसिपल्ड ड्राफ्ट डॉजर भी कहते हैं। पॉपुलिस्ट कौन होता है? तो जो पॉपुलिस्ट होते हैं वो जो है एक ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं, या एक ऐसे नॉर्मल पीपल होते हैं, या फिर एक मतलब ऐसे मतलब एज अ पॉलिटिशियन ही होते हैं, जो ऑर्डिनरी मतलब कि जो कॉमन पीपल की तरफ से जो है उनके अधिकारों के लिए, उनके राइट्स के लिए लड़ते हैं ना, मतलब लोगों के लिए लड़ते हैं। कि उनको ऐसा मानना होता है कि उनके ग्रुप का, कि जो एलिट क्लास के लोग हैं, जो मतलब कि एक मतलब विशिष्ट जाति के लोग हैं, विशिष्ट वर्ग के लोग हैं, उनके द्वारा जो है उन्हें उनका शोषण किया गया है, वो मतलब कि डिसरिगार्ड किए गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो लड़ता है ना, उसे हम पॉपुलिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे इस वर्ड का क्लू अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा द पीपल राइट और रॉन्ग ना। तो दिस गोज टू 11। अनदर वर्ड वी हैव रेलिस। तो रेलिस मीन्स जो होता है वो होता है फॉर प्लेजर ना, इंजॉय समथिंग ना। सो किसी चीज़ का मतलब कि मतलब इंजॉय करना, या किसी चीज़ को लेकर बड़ा एक्साइटेड रहना ना, तो एक्साइट करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेलिस से जो है वो करती हैं। और इसका जो वो मतलब है, तो इस ऐसे वर्ड के लिए जो क्लू है वो हमारे, तो इसका जो क्लू है हमारे पास है, इट्स सो गुड आई कैन टेस्ट इट। मीन्स क्यूरियस भी है, एक्साइटेड भी है, इंजॉय भी ले रहा है। सो हियर यू कैन से 12 नंबर इज हियर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिक्विजिशन। वी हैव टू सर्च द क्लू फॉर दिस वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ रिक्विजिशन। तो रिक्विजिशन का मतलब होता है, जैसे आपने बहुत से लोग को देखा होगा, वो कहते होंगे लिख के दो,
लिखित में दो हमको। तो ऐसे लोगों के लिए जो है इसका ये वर्ड यूज किया जाता है कि लिख के दो, मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल ऑर्डर, ओके, जिससे मतलब कि किसी प्रॉपर्टी ऊपर के लिए क्लेम करने के लिए रिक्वेशन ऑर्डर होता है ना, वो तो लिख के देने के लिए कहते हैं, तो वो है। तो इसके लिए हमारे पास जो क्लू है वो है आस्क फॉर इट इन राइटिंग, लिख के दो, लिखित में दो। नेक्स्ट वी हैव अ सिज्म, ओके। तो इसको हम आप इसको सिज्म या सकिज्म, सकिज्म भी बोलते हैं, सकिज्म। तो इसका मतलब होता है कि जब सकिज्म का यूज़ होता है जब जैसे मेंबर हैं और कुछ मेंबर के आपसी मतभेद हो जाएं और उनमें जो है फूट पड़ जाए, तो ये सारे जो है डिसएग्रीमेंट, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट अमंग मेंबर्स ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ग्रुप में जब आपसी फूट हो जाता है, तो ऐसे ऐसे वाक्य के लिए हम इस सकिज्म वर्ड यूज़ करते हैं। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द क्लू फॉर दिस वर्ड, ओके। सो ऐसा वर्ड ढूंढना है हमें ना। तो वी हैव द लव बर्ड्स ब्रोकअप ना, मैंने कहा ना ब्रोकअप्स, तो ये एक क्लू दे दिया है उसने। लेकिन यहाँ पे लव बर्ड्स तो बच्चों की ब्रोकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो अब मान लीजिए, ठीक। तो ये बिलोंग करता है सकिज्म से। सकिज्म सिंपलिस्टिक, यार सबको पता है। तो सिंपलिस्टिक मीन्स जैसे मैंने कहा सबको पता है कि एक ऐसा पर्सन होता है जो मतलब किसी भी प्रॉब्लम्स को मतलब बहुत इजीली हैंडल कर लेता है, वो सिंपलिस्टिक पर्सन होता है ना। किसी को मतलब कि बहुत कम कठिन तरीके से उसको हैंडल कर लेता है। तो ऐसे ऐसे वर्ड के लिए हमारे पास क्लू बचा है इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दैट। तो दिस इज 15 एंड द लास्ट वी हैव अ विसरल, ओके। सो विसरल, ओके। सो विसरल हियर, विसरल मीन्स होता है कि मतलब कि कुछ ऐसा जैसे कि आप किसी के विचारों से प्रभावित ना होकर उसकी भावनाओं से प्रभावित हो, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड्स के लिए जो क्लू हमारे पास एक लास्ट ही बचा है, ठीक है। तो वो हमारा जो है कौन सा बच गया है, वो है आई फेल्ट इट क्लियर टू द गट, ओके। सो इट्स ऑल अबाउट आवर इज वाले ना, मिस्ट्री जो रहस्य है इसका, वो हमने 16 वर्ड्स हमने जो है स्टडी किए विथ क्लू के साथ। और आई थिंक मुझे तो बड़ा मज़ा आया भाई इसको जो है, ये इस वाले मैंने भी पहले ऐसे कभी नहीं देखे थे, मैंने देखा, मैंने कहा शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। बात करते हैं इस पर, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इस पे हैं। अभी इसके बाद जो है अल्फ़ाबेट सूप क्रॉसवर्ड है, ठीक। इस पर भी हम बहुत सारे वर्ड सीखेंगे। बस ये करना है कि आपको एक लाइन से नोट्स बनाना है, हल्का हल्का एग्जाम टाइम में फटाक से देख लेना है। ना भी बनाओ यार, वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ओके, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ये पार्ट 2 था हमारा, ठीक। अब नेक्स्ट मिलेंगे हम फिर से। भाई प्लीज़ यार, बड़ी मेहनत लगती है यार, थोड़ा बहुत यार सपोर्ट कर दे भाई मेरे ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, उसमें जो है हमारे शेक्सपियर का भी सीरीज़ चल रहा है, उस पर भी हम थोड़ा वर्क कर रहे हैं। तो बीच में मुझे लगा कि यार नहीं, वोकैब वगैरह पे, ग्रामर पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं बैक टू बैक ये वोकैब के वीडियो डालूँगा। फिर अभी शेक्सपियर का, उसके बाद शेक्सपियर का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको कवर करना है, जैसे जूलियस सीज़र हो गया और रोमियो एंड जूलियट हो गया। बहुत सारे ऐसे उसके हिस्टोरिकल प्लेस हैं जो कि बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कवर होगा, बट एग्ज़ाम एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के आने तक आई थिंक लगभग 40-50% कवर हो जाएगा, ठीक। सो थैंक यू सो मच।